Our next session is on political films and their evolution in Indian cinema. And we have award-winning director, director, producer, actor, screenwriter. I mean, it's a long list. We'll get into that. Prakash Jha ji with us. And to moderate the session, we have Mr. Vikram Chauhan. Before I call our guest on stage, may we please have the audio visual on Prakash Jha ji. May we have the lights off, please? Thank you so much. हमारी माइथोलॉजी से लेकर के हमारे जो साहित्य है, गहराई है हमारी सभ्यता में और संस्कृति में और हमारे लोगों के बीच में, उनमें जो लोग काम करते तो तुम इनकरेज करोगे तो लोग वहाँ काम करेंगे ना। May I please invite Sir on stage? Ladies and gentlemen, may we have a huge round of applause for Prakash Jha ji. May I also invite Mr. Vikram Chauhan on stage? Before we begin with this session, I would just like to say a few words about Sir. Sir, if you permit, आपके बारे में 2 lines बोलना चाहूँगी कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब का जो ये शेर है शायद उस व्यक्ति के जुनून को बयान करता है जो भारतीय सिनेमा में खुद एक मील का पत्थर है। फिल्म्स अलग अलग तरह की होती है and I respect all of them. Some movies transport us into a dreamy sequence of the heroes dancing on the moon and heroines, singing in their chiffon saris on the Swiss Alps. They are a delight too. But Sir की फिल्म्स कहीं ना कहीं सच का आईना होती हैं। ऐसी फिल्म्स जो पूरे सिनेमा हॉल को ही नहीं पूरे देश को पार्लियामेंट बना देती हैं because they bring to light such social issues which are very very grave. आकर्षण, जय गंगा जल जैसी मूवीज़ जब हम देखने गए तो आम आदमी की तरह देखने गए, बट उसको देखने के बाद एक मन में जो क्रांति आती है, द क्रेडिट आई थिंक गोज टू यू सर. Sir has produced and directed 14 feature films, over 25 documentaries, 2 featurettes and 3 web series. Some of the hard-hitting films include Damul, Mrityudand, Ganga Jal, Apharan, Rajniti, Chakravyuh and Satyagrah. His web series Ashram raked in over 1 billion views. Please put your hands together for the man who knows the pulse of the nation. To moderate the session, we have Mr. Vikram Singh Chauhan with us. He's a lawyer and entrepreneur. He's also an avid bibliophile and a historian by passion. He harbors a deep fascination for vintage cars, focusing on their collection and restoration, blending his love for history with his professional endeavors. He seamlessly integrates intellectual curiosity with personal hobbies. Over to you, Mr. Chauhan. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, आदाब. सर से सवाल के पहले आपसे सवाल. Is art political or is it apolitical? अतुल जी, आप क्या कहेंगे? Sir, what do you think? Is art political or is it apolitical? There is nothing without politics. So we start from there. To understand a man's politics, we first have to understand the man. प्रकाश साहब का जन्म 1952 में बेतिया में हुआ. प्रकाश साहब के फादर बेतिया के अपने गांव के पहले ग्रेजुएट थे. पहला सवाल वहाँ से सर, आपके घर में 1950s में एक ग्रेजुएट था, कितना असर उस आदमी के एजुकेशन पे आपके और आपके भाइयों बहनों पे रहा? 1950s में इंडिया में एजुकेशन बहुत कम थी, स्पेशली ग्रेजुएट एजुकेशन. So in 1950s Bihar, your father was a graduate. How much did it affect your thinking and how you saw the world? मेरे दादाजी भी टीचर थे स्कूल में, ज़मींदार भी थे और मिडिल स्कूल में पढ़ाते भी थे. तो मुझे लगता है कि स्रोत वहाँ से हुआ होगा. और पिताजी ग्रेजुएट थे
और मुझे बड़े शर्म के साथ यहाँ आज एडमिट करना पड़ता है कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। मतलब एक एक टिक करने वाली ख्वाहिश है मेरे मन में, किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, लेकिन विद्या का, अध्ययन का, पढ़ाई का असर तो था ही हम लोगों में, और हमें बहुत अच्छे स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक गया था। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी, FTII दोनों आप गए, तो एजुकेशन से आपका रिश्ता गहरा ही नहीं अंदरूनी भी रहा पढ़ाई है। पूरी नहीं कर पाया मैं। आपकी मदर आपसे बस 16 साल बड़ी थी, मदर कम एंड एक दोस्त ज़्यादा थी। कितना असर रहा आपका उनसे बात करने में कि जो शायद आप अपने फादर से ना कह पाते अपनी माँ से कह लेते थे? हाँ, वो तो दोस्ती थी, वो बड़ी बहन जैसी थी, और कुछ भी कह सकते थे उनसे। आपका मैंने एक किस्सा सुना कि आप जब सिगरेट पीने लगे, उन्होंने आपकी सिगरेट चुरा के पी। क्या ये नहीं, सच? पी नहीं, उन्होंने थ्रेटन किया मुझे कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं भी पीना शुरू कर दूंगी। सर ऐसा के कुछ बारे हुआ में था। कुछ और बातें। अनुभूति फाउंडेशन सर की फाउंडेशन है। ये कल्चरल डेवलपमेंट, डिजास्टर रिलीफ और कोसी फ्लड्स में इसने बहुत काम करा। कोविड में भी लोगों की आगे बढ़ बढ़ के मदद करी। यहाँ से अपने पहले सवाल पे, जो आपकी फिल्म की तरफ होगा, आपने सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस एग्जामिन करी हैं, चाहे वो कास्ट हो, जेंडर हो, एजुकेशन हो, करप्शन हो। इन सारे पहलुओं में सबसे मुश्किल फिल्म में दर्शाना क्या था? कास्ट, जेंडर, करप्शन, पॉलिटिकल लेगेसी, फैमिलीज़, क्या ऐसा रहा जो आपको लगा आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगी उभार के लोगों तक पहुंचाने में? नहीं, पहले मैं बता दूं कि मेरी फिल्में वहाँ से शुरू नहीं होती हैं। ये जो सारी चीज़ें आपने बताई, कास्ट, जेंडर और फलाना फलाना, जो भी चीज़ें, मैं मूलतः मैं कहानीकार हूँ, मैं कहानियाँ ढूंढता हूँ। और ये इत्तफाकन है कि जो हमारे आसपास हो रहा होता है, ये समाज किन्हीं कारणों से परिवर्तित होता रहता है। किसी इन्वेंशन से, किसी नए रूल से, किसी तरीके से, किसी तरह की प्रगति से, किसी तरह के मापदंड आने से समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं असर होता है उसका। अब ये है कि मेरे एलिमेंट्स जो होते हैं कहानी कहने के, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरा ध्यान वहाँ से शुरू नहीं होता है कि अच्छा मुझे एक जेंडर बायस पे एक फिल्म बनानी है या कास्ट के ऊपर में। ये तो ऑटोमेटिकली हमारे बात करने के यही मुद्दे होते हैं। तो हमारी फिल्म में जैसे लड़का लड़की अगर प्यार करते हैं, सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण प्यार करते थे, लेकिन उनके मुद्दे अलग थे, उनके बिखराव भी हुए तो अलग मुद्दों पे हुए। तो कहानियाँ वहाँ से शुरू नहीं होती, कहानियों में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो कहानी का पार्ट बन जाती हैं। जी आपके कहने जी। का। यहाँ से बात करते हैं दमूल की। दमूल, आपने हमें बताया कि काल सूत्र करके शैवाल की कहानी जी, थी। शैवाल की कहानी पे है। ये बॉन्डेड लेबर के ऊपर कहानी बनी। इसी साल 1976 में ही सबसे फेमस केस हुआ, बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 83 में अबॉलिशमेंट हुआ बॉन्डेड लेबर का, बट आज भी 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लेवरी इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया। Some form of bonded labor is still present, may it be through money lenders, जो साहूकार आपके हैं, और through agricultural labor। ये कहानी सर आपने बिहार से करी, अभी भी वहाँ पॉवर्टी और बॉन्डेड लेबर है। ये कहानी का आपका फर्स्ट आइडिया कहाँ से आया? ये आपने कहाँ से देखी कि ये मुझे एक सब्जेक्ट मिला जो मुझे पकड़ना चाहिए, कि मैंने ये देखा है होते हुए, ये मैंने महसूस करा या इसका एक्सपीरियंस है मुझे? मैं जमींदार घर में था, और ये दामुल की बहुत सारी चीज़ें जो उसकी पटकथा में पिरोई गई, वो सब आंखों देखी थी, अनुभव किया हुआ था। संयोग से शैवाल की वो कहानी पढ़ी, कालसूत्र, तो मुझे लगा कि एक कहानी की रूपरेखा मिली है, दो पात्र मिले, संजीवना और
पांडे जी और उस कहानी के जरिए एक जमींदार और मजदूर की के संबंधों की कहानी, और दलित के साथ साथ जो भी कमज़ोर है, चाहे वो औरत है या वो दलित है या शारीरिक रूप से कमज़ोर है या सामाजिक रूप से कमज़ोर है, उनकी क्या संबंध होते हैं सर्फ और फ्यूडल लॉर्ड की। तो वो बातें चूँकि संजीवना की कहानी थी कालसूत्र की, तो वो सारी बातें उसके अंदर आती चली गई, और उस समय के सामयिक जो मज़दूरों का पलायन हो रहा था पंजाब की तरफ, वो भी एक मुद्दा उसके अंदर आया। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं एक अच्छी कहानी कहूँ। संयोग ये है कि मेरी कहानी के जो पात्र होते हैं और बातें जो होती हैं वो हमारे आसपास घट रही चीज़ों के बारे में होती हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी मोस्ट फेमस डॉक्यूमेंट्री, द फर्स्ट वन, फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म, ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इसकी बहुत तारीफ करी। ये बोर्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तब चेयरमैन थे, इन्होंने इसको आपको खूब शाबाशी दी। इसके 800 प्रिंट आए, इसको नेशनल अवार्ड मिला, और फिर ये बैन हुई। ऐसा क्या था जो ये बैन हुई? और इस बैन जिन्होंने करा, जे.एन. मिश्रा साहब का कहते हैं बहुत बड़ा हाथ था। ये आपकी फिल्मों में जे.एन. मिश्रा साहब की छवि कई आपके कैरेक्टर्स में देखी, मुझे जो लगा हमने देखी, क्या ये सत्य होगा? नहीं, वो एक पॉलिटिकल स्टीरियोटाइप नेता की छवि आपको यहाँ वहाँ नज़र आई होगी हमारी फिल्म में। वो लगभग सब वैसे ही होते हैं, वो मिल जाती है। फेसेस आफ्टर स्टॉर्म एक अचानक से बनी फिल्म थी हमारे। मैं उन दिनों लंदन में रहता था और वहीं आने वाला था, लौट के आने वाला था, तो न्यूज़ सुना बीबीसी में। वो न्यूज़ रीडर कह रहा था कि इन द हिंदू स्टेट ऑफ बिहार मुस्लिम्स आर बीइंग बुचर्ड। दैट वाज द लाइन विच कॉट मी। तो बिहार शरीफ में बहुत ज़बरदस्त दंगे हुए थे और बहुत एक तरफा बहुत कुछ हुआ था। फिर वो रुक गया था, और जब तक मैं आया, आने के बाद मैं फिल्म्स डिवीज़न गया। उन दिनों डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाया करता था, और एन.एस. थापा हमारे चीफ प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उनसे कहा, भाई एक यूनिट मुझे दे दीजिए, मैं जाऊंगा बिहार शरीफ, देखता हूं क्या हो सकता है। जब तक मैं गया तब तक दंगे ख़त्म हो गए थे, लेकिन कर्फ्यू पूरा लगा हुआ था। तो आई जस्ट कुड शूट द फेसेस एंड ट्राई टू टेल द स्टोरी थ्रू दोज फेसेस, कि हुआ क्या होगा, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और दैट इज़ वाई दैट फिल्म वॉज कॉल्ड फेसेस आफ्टर स्टॉर्म। And it got banned. It was one of the first films. क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं किसी ने सरकार की मतलब ज़्यादा तारीफ कर दी होगी। तो हमारे उस वक़्त मिश्रा साहब की सरकार थी और इंदिरा जी थी, और इंदिरा जी उन दिनों कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने वाली थी। तो छवि ख़राब नहीं हो, ये सोच करके वो फिल्म जो है उसकी प्रिंटें खिंचवा ली गई सिनेमा हॉल से। और संजोग ऐसा रहा कि उसको मेरा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार भी उसी फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री को मिल गया। तो ये इत्तफाकन बात थी। इत्तफाकन ये भी है कि आपका ऑलमोस्ट सारी सरकारों से जो इक्वेशन रहा है, उनको आपकी फिल्में पसंद नहीं आई हैं। आपकी फिल्मों के खिलाफ सारी सरकारें, आई थिंक यूनिफॉर्मली ऑल ऑफ देम, वो क्या है कि हैव हम had लोग some issues or the other. हम लोग स्थायी विपक्ष के व्यक्ति हैं, और मैं तो हूँ ही, सुधीर भी है, कि जिसकी सरकार होती है हम उसके सामने खड़े रहते हैं। क्योंकि जब आपके पास सरकार है और जब आपके पास पावर है तो आप गलती करेंगे ही। ये स्वभाव है हमारा, नेचर है। जैसे ही हम
को मेजॉरिटी मिलती है, जैसे ही हमारे हाथ में सत्ता आती है, तो हम गलतियां करेंगे। हम अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपनी शक्ति को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाएंगे जिसमें कि लोगों की हानि होगी ही होगी। तो कम से कम हम सत्ता के ना रहें। मैं तो स्थायी विपक्ष का व्यक्ति हूं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई तब या आज भाजपा की सरकार है तब। सब मित्र भी हैं हमारे उनके बीच में, लेकिन उनके साथ मंच पे खड़ा नहीं हो सकता। आप स्थायी विपक्ष हैं। आजकल के सिनेमा में स्थायी विपक्ष है क्या? कि आजकल आपको हेगियोग्राफीज एंड काफ़ी प्रो गवर्नमेंट एंड प्रो सेंटर, प्रो स्टेट मूवीज दिखेंगी। ये ऐसा चेंज क्यों आया ये कोई है आज की ही बात नहीं है, ये हमेशा से होता है, ये हमेशा होता रहा है। कुछ लोग उनके साथ खड़े होंगे और कुछ सामने खड़े होंगे, कुछ चुप भी रहेंगे। ये हमेशा होता रहा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। पर आपको लगता है कि आजकल के टाइम में गुड सटायर, जैसे जाने भी दो यारों, वेल डन अब्बा, वेलकम टू सज्जनपुर, क्या ऐसी पिक्चरें अब बन रही हैं जो सैटराइज कर रही हैं, एक हंसी ला रही हैं बहुत सीरियस पॉलिटिकल सिचुएशंस को और बहुत सीरियस पॉलिटिकल डिवाइड्स को? देखिए, समय थोड़ा बदल गया है। मतलब आज का समय 10 साल पहले ऐसा नहीं था, उससे 10 साल पहले भी ऐसा नहीं था। थोड़े मापदंड ऐसे हमारे समाज में बदलते रहे हैं जिसमें कि विचारधाराएं रुक गई हैं। हम जजमेंटल हो गए हैं, हम सोचना नहीं चाहते, हम विरोध कम करते हैं, हम सवाल कम उठाते हैं, और ये सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, लगभग पूरे विश्व में ऐसी ही हवा चल रही है कि हम अचानक से, ऐसा नहीं कि कोइंसिडेंस है कि एक ही समय में हिस्ट्री में, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे अपना देश हो, चाहे टर्की हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, एक ही तरह के मजबूत ऑथोरिटेरियनिज्म की हवा चली हो, और ऐसे मजबूत लोगों में हमने अपनी आस्था जो है वो इन्वेस्ट की हो। ये अचानक से नहीं हुआ है, ये एक पैटर्न तो हुआ ही होगा इसका कुछ। और एज पीपल, एज सोसाइटी ऑल्सो, आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट has been changing, has been, क्योंकि अब प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत पैकेजेस मिलने लगे हैं आम आदमी को। वो एक कमर्शियल ट्रेड सा बन गया कि अच्छा तुम क्या देते हो हमको, तुम्हारा क्या पैकेज है, हम उसमें बिलीव करने लगे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या केजरीवाल हो, सब लगभग एक आम आदमी के साथ रिलेशनशिप इसी तरह की बन गई है कि जो कितना अच्छा दे सकता है हम उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आम आदमी की तरह हमारी सोसाइटी इसी तरह की हो गई है। तो इसलिए ये कहना कि आज सटायर बन सकता है कि नहीं, पता नहीं सटायर है भी कि नहीं, पता नहीं कि मतलब आई कांट रियली से इफ वी हैव द कैपेसिटी टू एंजॉय दैट सटायर एनीमोर। Have we lost the ability to laugh on ourselves as a society altogether? I don't know. We need to, because जब आपने कहा कि बहुत कम बन रही हैं, बहुत कम लोग बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा। लोग शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए हैं। नहीं? आपकी एक मूवी थी जिसमें आपने एक्टिंग करी, एंड आई थिंक इफ आपने नहीं देखी है, प्लीज गो सी इट। मट्टू की साइकिल। It's a movie about poverty. So just to give you very basic stats about India's poverty, 50% of India's GDP comes from 13 districts. 77% of India's national wealth is in the top 10%. And if you remove that, our GDP is close to sub-Saharan Africa.
मटरू की साइकिल इज अबाउट पुअर लेबरर एंड हिज साइकिल, और वो एक साइकिल टूट जाने से उसकी लाइफ में कितना बड़ा असर पड़ता है। एंड आई वॉज मूव टू टीयर्स वॉचिंग द मूवी। थैंक यू फॉर दैट। बट आपको ऐसी एब्जेक्ट पॉवर्टी आपने देखी बढ़ते हुए, बाकी लोगों को अब हम ग्लिट्स एंड ग्लैमर दिखाते हैं, क्या इज इट सेलेबल नाउ? इज पॉवर्टी स्टिल sellable? Because the West does realize our poverty, but we don't really care about it. You mean can poverty be packaged for selling? Can poverty be shown to us so that we realize how poor we really are? नहीं, देखिए ऐसा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। पॉवर्टी आपके लिए उस साइकिल वाला की पॉवर्टी है, साइकिल वाला उसी में खुश है, साइकिल वाला वैसे चलता है। वो फिल्म जो थी वो मट्टू की ज़िंदगी जो है वो उसकी बेटी की उम्र 20 साल की है, उसकी साइकिल की उम्र भी 20 साल की थी। तो वो परिवार ही का हिस्सा थी साइकिल। वो साइकिल टूटती थी तो लगता था परिवार टूट रहा है। वो फिल्म थी ऐसे लोगों के बारे में जो कि इस समाज को, देश को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीज़ों का निर्माण करते रहते हैं, बड़े बड़े पुल बना देते हैं और पुल के नीचे उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। और ऐसे लोग हमारे आसपास भरे पड़े हैं, चाहे वो सड़कों पे सब्जी बेच रहे हों और ठेले पे कुछ लगा के कर रहे हों या रिक्शा चला रहे होंगे, और हम उनके बारे में नहीं सोचते। ऐसा भी नहीं कि ज़रूरी है सोचना उनके बारे में, बट हमारी ज़िंदगी का एक रहने का हिस्सा बन गया, वो तरीका बन गया है। तो एक पहले फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर थे मोहम्मद गनी मथुरा से, उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी थी मट्टू की साइकिल की। मैंने पढ़ा, मैंने बहुत दिनों के बाद, वो थोड़ी देर पहले जब सुधीर बात कर रहे थे समांतर सिनेमा की, पैरेलल सिनेमा की, तो उसमें खूबी क्या थी हमारे सिनेमा में उस समय कि हमारा सिनेमा था, हम निडर थे, हम किसी चीज़ की चिंता नहीं करते थे, हम सब्जेक्ट जो था उसके ऊपर ध्यान देते थे और सच जो था उसका वो हमें भाता था। तो मुझे अचानक से लगा कि यार फिर से कुछ ऐसा मिला है जिसमें कि प्योरिटी है, इस कहानी में कोई लाव लपेट नहीं है, तो कहना चाहिए। तो वो उस जुनून में वो कहानी बनी। तो बनाते वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि पॉवर्टी को बेचना है या इस तरह की, क्योंकि वो बात हम एज फिल्म मेकर्स हमको मुझे नहीं समझ में आता। पॉलिटिकल पार्टी भले नारा दें गरीबी हटाओ या कुछ करो जिसका कुछ बहुत बड़ा असर पड़ता होगा, गरीबी है। और जिन 70% लोगों की आपने बात की कि पैसा उनके पास है, मज़े की बात यह है कि जिनके पास पैसा नहीं है वही देश चला रहे हैं, और जिनके पास पैसा है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, दे डोंट पे टैक्सेस। Losses are socialized, gains are privatized. सर इसी से आते हैं चक्रव्यूह पे। चक्रव्यूह was a movie about naxalism and rural distress. मेरा आपसे एक ही सवाल है इस मूवी को लेके कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, why does it resonate with the poor, the young and the overeducated? ऐसा क्या है कि आपको जितने भी स्कॉलर्स मिलेंगे, why do they have a left leaning bent of mind? And you'll find people who are in abject poverty, they will also be left. ऐसा आपको इस मूवी बनाते में कभी लगा, या ऐसा क्यों हो सकता है? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि जिनके पास नहीं होता है वो एक लेवल पे उनकी अपनी जात ही हो जाती है, ना होने वालों की जात होती है, हैव नॉट्स की, उसमें सब शामिल रहते हैं। तो उनकी अपनी लड़ाई होती है, उनका अपना संघर्ष होता है। और जिनके पास है उनका पेट भरा नहीं रहता है, उनको तो और भी चाहिए, तो वो लाएंगे कहाँ से, छीनेंगे कहाँ से। तो ये तो संघर्ष हमेशा का है, ये तो चलता ही रहता है। और सरकार जो है वो उसको प्रगति भी चाहिए
और सरकार उनको भी देखभाल करना चाहती है जिनके पास नहीं है। लेकिन जहाँ भी विवाद होते हैं, जहाँ भी विकार होते हैं, वहाँ संघर्ष भी होता है, और ये सच्चाई है हमारे समाज की। मैंने चक्रव्यूह में ये समझने की कोशिश की थी कि सही कौन है, जो उनके बीच में लोग रह रहे हैं उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, जिनका संघर्ष इतने वर्षों से चल रहा है, क्या चाहिए उनको। तो लॉजिकली, रैशनली, इमोशनली अगर हम उनके बारे में सोचें तो मुझे लगता है कि बात करने से कुछ तरीके, कुछ रिजल्ट्स निकल सकते हैं। लेकिन ये शाश्वत बात है कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में खाई जब तक पटेगी नहीं, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे जमीन के रूप में हो, चाहे वो अधिकारों के रूप में हो, तब तक समाज में प्रॉब्लम तो रहेगी। उससे आते हैं आरक्षण पे। आरक्षण देश में शायद सबसे उबलता मुद्दा है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस ऑन इट। लोग कहते हैं आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि 2000 सालों से जो आरक्षण मंदिरों में है, क्या वो आप ख़त्म कर सकते हैं? क्या आप आरक्षण अपने दिमाग से हटा सकते हैं? कैन वी रिमूव कास्ट फ्रॉम आवर माइंड एज अ सोसाइटी इन इंडिया? देखिए, किसी न किसी फॉर्म में तो है ही, हर जगह है ये। अफर्मेटिव एक्शन अमेरिका में नहीं होता अगर वो मार्टिन लूथर। हाँ, और हमारे यहाँ ये बात सही है कि जो सोशल इक्विटी है वो कैसे सही की जाए। मतलब रेस दौड़ना है, मेहनत करना है और पाना है तो लाइन तो एक ही होनी चाहिए। अब जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रहे हैं, जो दबे रहे हैं, उनको कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो उनका सहारा बनाना पड़ेगा। अब ये है कि जैसा कि हमेशा से होता है कि पॉलिटिकली हम हमेशा विकृत हो जाते हैं। जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं, आरक्षण जिस नज़रिए से बना वो सही लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, वो विकृत होता चला गया। उसकी प्रैक्टिस, जिस तरह से हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि लोकतंत्र से बेहतर तरीका शायद नहीं हो सकता समाज के संगठित और सही तरीके से रहने का, लेकिन लोकतंत्र विकृत हो गया है, इसके प्रोसेसेस विकृत हो गए हैं। आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र फेल कर गया है। द वेरी काइंड ऑफ टेनेट ऑफ सेकुलरिज्म, जो कि इक्वालिटी होती है, राइट टू स्पीच होता है, और मतलब आज तो यह है कि राइट टू प्रोटेस्ट भी हो जाना चाहिए। तो ये फिर से कुछ होगा, कुछ मंथन होगा और शायद कोई नया तरीका निकलेगा। इसमें कुछ सोशल डेमोक्रेसी जिसकी प्रैक्टिस कई जगह शुरू हुई है, जहाँ सिर्फ चुने हुए लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, आपके जैसे लोग आम बैठ करके भी फैसले लेते हैं समाज के बारे में, वैसा कुछ हो सकता है तो शायद बेहतर हो। क्योंकि नंबर गेम जो हो गया है वो तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि नंबर जुटाने के लिए तो आपको कहाँ जाएंगे? आप अपने घर में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, अपने समाज में जाएंगे, अपनी जात में जाएंगे, अपने कम्युनिटी में जाएंगे, पैसे बांटेंगे, पैकेजेस देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। बट इन चीज़ों से अगर आप नंबर लेके आते हैं तो आप डेमोक्रेसी कैसे सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकेंगे? सर, आपके लिए इंडिया का आइडिया क्या है? What is India to you? Because all your movies have shown great faith in us as a people and us as a country. There is always the person who has lost faith, but वो
सुबह का बिगड़ा रात को घर चला है उसे भूला नहीं कहते, शायद आपकी मूवीज में मुझे- वो थीम रही है। मुझे हमेशा लगता है कि सत्य है तो हमारे बीच में ही, वो कभी नज़र आता है, ज़्यादातर नज़र नहीं आता है। अगर वो नज़र आते रहेगा, मुझे लगता है कि अपने बीच से ही निकलेंगे इसके। और एक हमेशा ये चीज़ हमेशा लगती है मुझे कि अगर समाज के जैसे कहें मॉनिटर को ढूंढे ना, तो औरतें ही इस समाज को ठीक से चला सकेंगी, औरतें ही इस समाज का मॉनिटर बन सकेंगी। और इसलिए हम मेरी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि हमेशा इवेंचुअली दे आर द सेनर प्लेयर्स ऑफ द सोसाइटी। डू यू थिंक इट्स हार्डर फॉर वुमेन टू कम आउट इन सोसाइटी? वो घर से बाहर निकलने में इतना स्ट्रगल है जितना शायद एक आदमी को कभी जिंदगी में नहीं निकलने को पड़े। हाँ, वही सत्य की तरह है, जो आसानी से निकल के नहीं आता, निकलने नहीं देते हम लोग, उसको दबा के रखते हैं। और क्या, सत्य तो है वही। आपकी मूवीज में एक और, आपकी मूवीज में टीचर्स, मेंटर्स, दे हैव ऑलवेज बीन द वॉइस, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हुए, एक सही आइडिया देते हुए आपके लीड कैरेक्टर को। आपकी लाइफ में ऐसे कौन थे जिन्होंने हर मूवी में ऑलमोस्ट आपकी एक मेंटोर, एक टीचर टाइप का कैरेक्टर रहता है प्रोटैगनिस्ट के इर्द नहीं, गिर्द? फिर वही कहानी कहने की बात है। कहानी जब हम कहते हैं तो हमें कि मतलब सत्य धूमिल हो रहा हो, सच जो सही बात है वो कमजोर पड़ रही हो, वो बात सही है, लेकिन उसका होना जरूरी है। तो शिक्षक हो या मेंटर हो या सत्य का प्रतीक हो, जो भी हो, वो काउंटर करने के लिए वो तो रहता ही है ना, क्योंकि सेनिटी बना के रखनी पड़ेगी। इवेंचुअली कहाँ से हम किस तरह से उम्मीद को छोड़ दें, उम्मीद तो बना के रखनी पड़ेगी ना। डोंट लूज होप इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। सर, आश्रम पे आते हैं। आश्रम आपके लिए कितना चैलेंजिंग था एक ओटीटी के लिए लिखना? बिकॉज आई फील आपकी ओटीटी की राइटिंग एंड एक मूवी की राइटिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा कहानी है, और हर सीज़न एक नई तरह नई चीज़ आनी है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था एज अ राइटर टू राइट आश्रम? देखिए, हम फिल्म लिखते हैं तो 130 पन्ने में हम फिल्म की स्क्रिप्ट लिख देते हैं। वो एक सीज़न में 400 450 पन्ने लिखने पड़ते हैं। तो बड़ा पेड़ बनाना पड़ता है, बरगद जैसा, शाखाएं बनती हैं, फिर वो यहाँ जाती हैं, वहाँ जाती हैं, कहीं ज़मीन में लगती हैं, कहीं मकान पे जाती हैं। तो कहानियाँ पसरती हैं उसमें, लेकिन तना तो एक ही होता है। अगर वो एक सही तरीके से एक पर्पस को बना के रखे तो चलता रहता है। थोड़ा पसरा सा रहता है ओटीटी का जो मामला है वो, और थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहता है। जैसा आपने कहा, मैं फिल्में बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ओटीटी थोड़ा तंग आ गया हूँ। सर, आपको राइटिंग में क्या लगता है? आपकी राइटिंग आपकी ऑडियंस के लिए है या आपके लिए है, या वो राइटिंग को आप? नहीं, मैं audience के बहुत लिए- कमज़ोर राइटर हूँ। मुझे एक स्क्रिप्ट को लिखने में कई साल लग जाते हैं, और कई लोग हैं जैसे सुधीर बहुत जल्दी लिख लेते हैं। मुझसे नहीं होता, मुझे कई बार लिखना पड़ता है, 12, 13, 14 बार पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले लिखनी पड़ती है। गंगा जल की ही कहानी करीब 7-8 साल तक काम किया था। तो लेकिन मुझे आनंद बहुत आता है लिखने में, हर बार लिखने में आनंद आता है। तो सर, आपके कैरेक्टर्स इन मूवीज एक एवोल्यूशनरी पाथ पे रहते हैं। वो कहीं से शुरू होते हैं और जहाँ उनका ख़त्म होता है, उनका मॉरल जो कंपस होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। आपको भी ये अपनी पर्सनल लाइफ से या आपके कैरेक्टर्स की एक जर्नी है कि उनको कहीं से कुछ नहीं, तो गुजरते हुए कहीं ये पहुंचना तो है? कहानी की डिमांड है। अगर आर्क नहीं बनेगा कैरेक्टर का तो कहानी क्या बनेगी?
सर आपकी एक मूवी थी आरक्षण में ही आपने एजुकेशन के कमर्शलाइजेशन की बात करी है। एजुकेशन, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी 3 डिग्री 25,000 रुपये में है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से। क्या वो आज क्वालिटी एजुकेशन वो हमारे लोग या यूथ को नहीं मिल रही है, या वो कोचिंग सेंटर्स में जाके पॉइंट बेस्ड एजुकेशन, एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए, उसके लिए एजुकेशन है, या ग्रो करने के लिए उनकी एक्चुअल ग्रोथ क्या हो रही है? देखिए, ये somehow I had seen it coming। जो आरक्षण मैंने बनाई थी उस वक्त ये बहुत कोटा वगैरह काफ़ी एक नया, आपके पास पैसे हैं तो आप कोचिंग कर लें, और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ गई समाज को 90 के बाद, 95 के बाद से स्पेशली एक अलग तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ गई, और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो एकदम से बदल गया। हमने पूरी तरह से सिर्फ इंजीनियर और मैनेजर बनाने शुरू किए अपने समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, और सारी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए। 2000 के बाद से धीरे धीरे आप देखें इतने सारे नए यूनिवर्सिटीज़ खुलने शुरू हो गए जहाँ की कंप्यूटर साइंस के और मैनेजमेंट के पढ़ाइयाँ चल रही हैं। जो ये स्थापित यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें से भी बहुत सारे ये नए कोर्सेज वगैरह आ गए। और ह्यूमैनिटीज़, आज कोई भी बच्चा 12वीं पास करने के बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, प्योर साइंसेस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इन चीज़ों की पढ़ाई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो इस समाज से पूरी तरह से ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई ख़त्म कर दी गई। जब मैं आरक्षण बना रहा था सुधीर, तो उस वक्त का रिसर्च था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज़ के लिए टोटल सारे कॉलेजेस के बीच में 600 स्कॉलरशिप देते थे वो, और जिस साल मैंने आरक्षण बनाया उस दिन 6 एप्लीकेशन आए थे उस साल। तो जिस समाज से ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई आप ख़त्म कर देंगे, सिर्फ मैनेजर्स और इंजीनियर्स बनाएंगे, तो उस समाज का मोरल कैंपस क्या होगा? हमको अपनी सामाजिक घटना के बारे में मालूम नहीं, हमको अपने इतिहास के बारे में मालूम नहीं, भूगोल नहीं समझते, सोशियोलॉजी नहीं समझते, फिलॉसफी नहीं समझते, दूसरे तरह के लोग पैदा हो गए। 2 जनरेशन ऐसे खड़ी हो गई है। तो एक अलग तरह से इसको डील करना पड़ेगा, अलग तरह से इसको समझना पड़ेगा। इसके नीड्स अलग हो गए हैं। हमारे बीच में हम एक दूसरे से बात नहीं करते, जगह भी नहीं पूछते, मतलब सारी चीज़ें फ़ोन पे हो जाती हैं। जिसका आविष्कार हुआ था कि एक दूसरे से हम बात कर सकें, उसका इस्तेमाल ये हो रहा है कि हम एक दूसरे से बात न करें, उसके लिए फ़ोन का इस्तेमाल होता है, एक परिवार के अंदर ही। उससे ऊपर जा चुका है अब, क्योंकि दिस टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग। हम बात करते रहते हैं, वो सुनता रहता है। कि गाड़ी के बारे में हम और सुधीर अगर बात करते रहे, थोड़ी देर के बाद अगर फ़ोन उठाऊंगा तो गाड़ी के एडवर्टाइजमेंट उसमें आ जाएंगे। तो हमारे बीच में एक स्पाई की जैसे काम कर रहा है। आप सोचिए, ह्यूमनॉइड्स आ रहे हैं हमारे बीच में काम करने के लिए, एआई आ रहा है हमारे बीच में काम करने के लिए। हमारा समाज कैसे चलेगा? जो आप खाते पीते रहेंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी वो सब वहाँ सुन रहा है, एक जगह से कंट्रोल होकर के सारा कुछ आ रहा है आपको, मार्केटिंग सारी होती रहेगी। सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग। दिस गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स एंड वी हैव अ वेरी डिफरेंट पॉपुलेशन टुडे। The young population is very different from what, you know. So education has different meaning. आप वापस से हम फिर से बच्चों को साहित्य और इतिहास और भूगोल या समाजशास्त्र तो नहीं पढ़ा सकते। एक और सवाल रहेगा। मेरी वाइफ राजस्थान से हैं, वो लखनऊ पहली बार आए तो उनको हम लोग खाना खाने बाहर गए, एक साइन लगा था, आर्म्स एंड एमिनेशन नॉट अलाउड।
ये लखनऊ में देखा, बड़ी हैरानी हुई। हम लोग तो बढ़ते हुए ये हर जगह देखा था, इट बिकेम कॉमन प्लेस। बिहार में भी ऐसे साइंस हैं, ये मैं जब पटना गया मुझे भी देखे, मुझे नॉर्मल लगे। जो हमारा सिनेमा में यूपी और बिहार का डिपिक्शन है, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू आइदर पॉलिटिक्स, क्राइम। यूपी का थोड़ा बेटर हुआ है कि आपको एक दो लव स्टोरीज भी मिल जाएंगी, पर उनमें भी गोलियां बारूद सब चलती हैं। तो यूपी बिहार की कहानियाँ, डेली कहानी, रोज़मर्रा की कहानी, ये सिनेमा में कब आएंगी? स्पेशली फॉर बिहार। बिहार की अभी भी कहानियाँ सारी ज़्यादातर आर स्टिल रिलेटेड टू क्राइम, सर, कास्ट, क्रीड। डेली और रोजमर्रे की कहानी पे फिल्म नहीं बन सकती। कहानियां मतलब घटनाओं पे नहीं बनती, दुर्घटनाओं पे बनती है। कहानियां होनी पे नहीं बनती, अनहोनी पे बनती है। तो मतलब अगर रावण ना होता तो रामायण का क्या था? द्रौपदी ना होती तो महाभारत ना होता। कहानियां तो ऐसी ही होती हैं। हमारे हिंदुस्तान में जब तक खून न निकले चोट न समझते लोग। And on that note, I would like to thank sir. It's been a lovely evening of conversation with you. थैंक यू। Thank you so much, Prakash ji, for some hard-hitting facts and for highlighting certain nuances of the social fabric जो हम शायद देखना नहीं चाहते या उसे ignore करते हैं. Thank you so much, and for acknowledging the fact that women can run the world, in a more fairer manner. Thank you, Vikram ji, for moderating the session and for asking such beautiful questions. May I please invite on stage Sudhir ji once again, please. May I invite you on stage, and AP Maheshwari ji, if you could kindly come on stage to felicitate our guest and the moderator for the evening. Ladies and gentlemen, put your hands together for the maestro, for the director, for the storyteller, Mr. Prakash Jha.